Hello friends. In previous sessions, we have talked about the multiple partition allocation method, and we have identified there are the two types of multiple partition allocation method. One is fixed sites or a static partition allocation method, and other is the variable or dynamic partition allocation method. We have seen in a static partition allocation method two variant. In one, first one, all the partition is of same size, so that the degree of multiprogramming is equal to the number of partition. And second one, the partition may be of the variable size. And again, we have seen for a variable size a partition, but this size is fixed. Means it is not going to change dynamically. Once it is size is fixed, when your system is initialized, at that time the size of the partition is going to be fixed, and that cannot be a change one. So for that, once we have seen that for each partition we may have one queue, or for all partitions we may have a single queue. And then by using the scheduling algorithm, the scheduling algorithm will decide that which process to be brought into the memory. And as per that one, the memory management unit try to find out the partition which is suitable for that particular process one. So if the space is not available, as we have seen, the swapping process, it will swap out the sum of the job, and that job will be waiting on the swap space. And later on, when that job becomes eligible, that job is again brought into the memory, and the process is going to continue its execution. So here the problems are arises that how many regions should we have, or how many partition to be have, and what should be the size of each partition. So this is based on some guess as per the requirement of the programs that we are doing. So there is no fixed criteria. If, for example, if you are going to use the system for the student one, then the size of the partition may be the small one. But if you are going to use for the businesses, again we may have the IO bound jobs or the CPU bound job. So as per the system which is used for the what type of processing that we can do with a system, the partition size and the number of partition is going to be decided. But as we have seen the various problems, if the process can demand more memory than the allocated partition, means what it says that your partition is of 6 MB and we are demanding more memory, so process cannot demand it. So it does not support for the dynamic relocation. अगर प्रोसेस स्वैप आउट हुआ है तो वही रीजन में प्रोसेस को स्वैप इन करना पड़ेगा. Doesn't support for the dynamic relocation. So what are the dynamic data structures are there? The dynamic data structures like a heap cannot be supported by your static partition. And the one main problem that we have discussed is the internal fragmentation. The fixed size partition mechanism is support from the internal fragmentation. So what are the two questions are there, that how many partitions should be there and what is the size of each partition? So based on this one, the second mechanism is going to be address the question, and that is for the dynamic partition. Means the partitions are the variable length and the number. Means you are not going to fix at a time of the system is going to be initialized. मी जेव्हा तुम्हाला म्हणतो की सिस्टम इज गोइंग टू बी इनिशियलाइज, म्हणजे काय, जेव्हा तुम्ही तुमची ऑपरेटिंग सिस्टम इन्स्टॉल करता ऍट दॅट टाइम वी वॉन्ट टू डिसाइड इट. जस्ट एज मी तुम्हाला कालच्या सेशन मध्ये सांगितलं की स्वॅप स्पेस, साइज ऑफ अ स्वॅप स्पेस शुड बी द डबल द साइज ऑफ युअर रॅम. हे कधी डिसाइड केलं जातं, जेव्हा तुम्ही तुमची सिस्टम इन्स्टॉल करसाल तेव्हा. तर इथं तुम्हाला काय आहे, इथे तुम्हाला जो तुमचा मेमरी आहे, दॅट मेमरी इज डिवाइड ओनली इनटू द टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज द OS पार्ट, and this entire part is available for the processes. So each process is allocating the exactly as much memory as it required. तो अभी आपके पास ये पूरा एक पोल है. सपोज फॉर एग्जांपल कि आपके पास 16 GB डेटा अवेलेबल है, sorry 16 MB डेटा अवेलेबल है, and this 2 MB for the OS one,
And now suppose for process P1 comes and process P1 demands how much data? The 3 MB. So whether we want to search for the whole? No, it doesn't want to search for the whole. That whatever this space is there, for example, this space is allocated for process P1, and how much space is allocated? 3 MB space is allocated. When another process comes, what is going to be happen? For that process also the memory is going to be allocated. For process P2 memory is allocated. Then for process P3 is memory allocated. Now assume that process P1 exit. So if the process P1 exit, what will happen? ये आपको मेमोरी कैसे दिखेगी? जो ऊपर वाली है वो ये OS वाला पोर्शन है, ये प्रोसेस P1 के लिए है, एंड दिस इज फॉर प्रोसेस P3. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये आपको यहाँ पे एक होल मिल गया है. So we want to keep a track of the memory which is allocated and which is free. Okay, so eventually holes are formed in a main memory. जैसे भी ये क्या हो गया है? ये holes form हो गया है. This is called external fragmentation. Now in place of immediately going for the external fragmentation and then for compactions, I'm going to illustrate you how this process is going to be allocated the space and how the memory management unit keep a track of allocated and the free space. Okay, so what we have for a fixed size partition, each partition may contains exactly one process. So the degree of multiprogramming is equal to number of partition, which was used in IBM OS 360 operating system. And if you are going to say not used nowadays. Okay, so we are talking about the variable partition. What we have the variable partition, the partition of the variable size. Just as I have explained you, not a fixed a site partition is there. Initially all the memory is free. What it mean by initially all the memory is free? Means जो आपका ये है only दो region रहेंगे. One region for OS and this entire region for is what? User process. मगर हमने single contiguous partition में देखा था. उस टाइम पे क्या था? Only one process था. यहाँ पे आपके कितने processes रहेंगे? I say that n user processes are there. Not a single user process is there. So OS maintains a table indicates that which part of the memory is free and which part of the memory is allocated. So we try to elaborate this problem. Okay, fixed partition में क्या हो जाएगा? now यहाँ से मैंने वो निकाल दिया है, OS का पार्ट निकाल दिया है. तो हर एक के लिए देखो है, तो यहाँ पे हमने 10 MB या फिर 10 KB का पार्टीशन है. हर एक 10 KB के पार्टीशन है. मगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेरिएबल पार्टीशन में क्या है? पहला 20 का है, देन 10 का है, देन 10 का है एंड देन 30 का है. ओके, वेरिएबल पार्टीशन में वेरिएबल पार्टीशन हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्क? सपोज दैट टोटल मेमोरी इज 100 MB आपके पास है. ओके, 0 to 99, 0 to 99. तो मेरे पास एक टेबल रहेगा. वो टेबल क्या मेंटेन करेगा? एड्रेसेस मेंटेन करेगा, कहाँ से कहाँ तक का फ्री है. तो इनिशियली में देखा है 0 to 99 इज फ्री. अभी कौन सा तो भी एक प्रोसेस आएगा, वो प्रोसेस डिमांड करेगा. ओके, सपोज फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 रिक्वायर्स 10 MB ऑफ स्पेस. तो कहाँ पे जाना है? वो जो टेबल है हमने, ये वाला टेबल है, ये वाला टेबल में देखना है. ये वाला टेबल में कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 99 तक है. तो अभी आपको क्या चाहिए? 10 MB चाहिए. तो पहले वाले 10 MB दे दो, पहले वाले 10 MB दे दो. वो किसको अलोकेटेड है? प्रोसेस P1 को अलोकेटेड है. उसके बाद मेरा फ्री वाला स्टेटस मुझे दिखाना पड़ेगा. उसके बाद मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? फ्री वाला स्टेटस दिखाना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? 10 MB स्पेस रिक्वायर की है प्रोसेस P1 के लिए. तो प्रोसेस P1 के लिए 0 to 10 MB दे दिया है. अभी ये टेबल में क्या हो गया है? ये टेबल में 0 to 9 किसको लोकेट किया गया है? प्रोसेस P1 को लोकेट किया गया है. अभी 10 to 99 फ्री है, यानी 90 MB अभी भी फ्री है मेरे पास स्पेस. हो गया है? तो ये कौन सा हो गया है? दिस इज द अलोकेटेड मेमोरी एंड दिस इज द फ्री मेमोरी. एक अलोकेटेड मेमोरी है और एक फ्री मेमोरी है. नेक्स्ट टाइम पे क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस P2 रिक्वायर्स द 30 MB स्पेस. तो कहाँ पे जाएगा? ये वाला जो फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस है. कहाँ से देखेगा? वो 10 से देखेगा. कितना चाहिए? 30 चाहिए. सो 10 to 39 विल बी अलोकेटेड फॉर प्रोसेस P2 एंड एज पर दैट वंस इट विल मेंटेन द टेबल. टेबल में एक और एंट्री ऐड हो जाएगी. प्रोसेस P2 के लिए क्या हो गया है? ओके, टेबल में चेंज हो जाएगा. पहले सब अलोकेटेड है, बाद में फ्री है. 10 to 39 अलोकेटेड फॉर प्रोसेस P2.
ओके, अभी भी मेरे पास 60 MB फ्री है। ओके, प्रोसेस P3 आया है, प्रोसेस P3 ने 20 MB का डिमांड किया है, तो 40 to 60 या फिर 40 to 59 is allocated for process P3 and as per that one this table is going to be modified. ओके, 60 तक किया है, अभी ये टेबल मॉडिफाई करना है 60 to 99। अभी भी मेरे पास 40 MB और स्पेस फ्री है। ओके, नाउ प्रोसेस P1 finishes its execution। तो प्रोसेस P1 finishes execution क्या हो जाएगा, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस अलोकेट हो जाएगा। अभी मेरे पास फ्री स्पेस के एक होल रहेगा कि दो होल रहेंगे? देखो, अभी तक मेरे पास फ्री स्पेस का कौन सा होल था, ये वाला फ्री स्पेस का होल था, बराबर है, ये वाला फ्री स्पेस का होल था। अभी जब ये प्रोसेस P2 टर्मिनेट हो जाएगा तो मुझे यहाँ से क्या होना चाहिए, इसका एंट्री रिमूव करना चाहिए, और यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, दिस इज द फ्री वन। हाँ, अभी ये हम यहाँ पे तो फ्री नहीं कर सकते, हम कहाँ पे फ्री लिखेंगे, ये टेबल में लिखेंगे। ओके, सो ये वाला प्रोसेस P1 यहाँ से चला गया है, अभी यहाँ से भी आपको डालना है, रिमूव करना है। ओके, 0 to 9 क्या हो गया है, फ्री हो गया है। देखो पहले इसमें क्या था, 0 to 9 किसके लिए था, प्रोसेस P1 के लिए था। अभी 0 to 9 किसके लिए हो गया है, प्रोसेस P2 के लिए हो गया है। आया समझ में? तो अभी मेरे पास दो वाले फ्री रीजन हो गए हैं, एक का साइज 10 MB है, दूसरे का साइज 40 MB है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या कहा गया है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस P4 रिक्वायर्स 25 MB। तो अभी 25 MB है, तो कहाँ कहाँ पे सर्च करेगा, जो फ्री है यहाँ पे सर्च करेगा। यहाँ पे कितने हैं, 10 MB फ्री है, अलोकेट कर सकता है क्या प्रोसेस P3 को, P4 को नहीं कर सकता है। दूसरा कहाँ पे है, यहाँ पे ये कितना फ्री है, और 60 फ्री है, तो ओके 25 अलोकेट कर सकते हैं, तो अलोकेट 25 अलोकेट करने के बाद बचता कितना है, ये स्पेस, यहाँ पे फ्री कितना बचेगा, फिर यहाँ पे 25 अलोकेट करने के बाद फ्री जो बचेगा वो 15 फ्री बचेगा। यानी मेरे पास टोटल कितना फ्री है, मेरे पास ये 25 MB अलोकेट करने के बाद 25 MB मेरे पास क्या स्पेस है, फ्री स्पेस है उसके बाद। ओके, तो 25 MB अलोकेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा P4। ओके, P4 यहाँ पे आ गया है, P4 यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया है, P4 यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया है, तो ये वाला फ्री जो था ये अलोकेट हो गया है। अभी मेरे पास ये 85 to 99 फ्री है। हाँ, 85 to 99 बोल तो कितना फ्री है, 15 MB फ्री है, और ये कितना फ्री है, 10 MB फ्री है। ओके, चलो, नाउ प्रोसेस P3 फिनिश एग्जीक्यूशन। P3 ने एग्जीक्यूशन फिनिश करने के बाद क्या हो जाएगा, ये P3 का जो 20 MB था, ये 20 MB क्या हो जाएगा, अभी फ्री हो जाएगा। ये 20 MB क्या हो जाएगा, अभी ये वाला यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्री आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको होल मिल जाएगा, ये फ्री हो गया है। तो अभी आपके पास अलोकेटेड के 2 एंट्री है और फ्री के 3 एंट्रीज है आपके टेबल में। अलोकेटेड के 2 एंट्रीज और फ्री के 3 एंट्रीज है। ओके, तो ये फ्री हो गया है। हाँ, ये यहाँ पे फ्री हो गया है, सो स्पेसिस अब फ्री। अभी आपके इसमें कितने हैं, हाँ, ये वाला अब फ्री है, ये वाला फ्री है, ये वाला फ्री है, और अलोकेटेड कितने हैं, 2 अलोकेटेड है। इसको कितना MB अलोकेटेड था, 30 MB। इसको कितना MB अलोकेटेड था, 25 MB। टोटल मेरा कितना था, हाँ, टोटल मेमोरी मेरे पास कितनी थी, टोटल मेमोरी वाज विथ मी इज 100 MB। उसमें से अलोकेटेड कितनी है फिलहाल, उसमें अलोकेटेड जो है 30 + 25 इज 55 MB अलोकेटेड है। अभी फ्री कितनी है उसके पास, ये मेरे पास फ्री वाली है। हाँ, मगर फ्री कंटिन्यूस है क्या, नहीं, फ्री जो है वो कैसी है, 45 MB, मेरे पास फ्री 45 MB है, बराबर है, मगर कंटिन्यूस है क्या, उन्होंने स्कैटर्ड है, कंटिन्यूस नहीं है। पहला वाला 10 ब्लॉक जो है वो 0 to 9 के एड्रेस स्पेस में, ये वाला। दूसरा वाला जो है तो 40 to 59 के एड्रेसेस में है। तीसरा वाला जो है वो 85 to 99 के इसमें है। ओके, नाउ अभी नया प्रोसेस आया, दिस न्यू प्रोसेस डिमांडेड द 25 MB स्पेस, कैन इट बी ग्रांटेड। मेरे पास फ्री कितना है, 45 MB फ्री है, और प्रोसेस P5 का डिमांड कितना है,
25 MB है, can 25 MB will be guaranteed to the process P5. Okay, so what is going to happen? The demand is for 25 MB, but as it is a contiguous memory allocation, so we require there should be a free chunk or the free memory of a 25 MB. मेरे पास 25 MB फ्री मेमोरी का कंटिन्यूस स्पेस चाहिए, मगर मेरे पास मैक्सिमम कितने MB का है? 20 MB का है। मुझे अलोकेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 25 MB का मुझे स्पेस चाहिए। अभी मेरे पास फ्री मेमोरी कितना है? मेरे पास फ्री मेमोरी 45 MB है, मगर मैं 25 MB का रिक्वेस्ट ग्रांट कर सकते हैं क्या मेरा सिस्टम? नहीं कर सकता है। हाँ, ओके, सिस्टम ग्रांट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है सिस्टम ग्रांट। ओके, सिस्टम इज नॉट एबल टू ग्रांटेड इट। तो मेरे पास 10 MB फ्री है, 20 MB फ्री है और 15 MB फ्री है। ओके, सो टोटल फ्री कितना है मेरे पास? 45 MB फ्री है। No, we cannot guarantee the request of a process P5 for 25 MB space because 25 is not free in a single slot or single hole, and this is called, the problem is called as a external fragmentation. हाँ, मेरे पास फ्री स्पेस है मगर अलोकेट नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने फिक्स पार्टीशन में कौन सा देखा था? हाँ, फिक्स पार्टीशन में हमने देखा था इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। So variable partition suffer from what? Variable partition is suffer from the external fragmentation. हाँ, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन कब आएगा? अभी हमने कहाँ से चालू किया था? बिग होल से चालू किया था। मेरे पास स्टार्टिंग में 100 MB का बिग होल अवेलेबल था। जैसे जैसे प्रोसेस आ रहे हैं, प्रोसेस आर कमिंग, दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर मेमोरी एंड रिलीजिंग। जैसे P1 आया, बाद में P2 आया, P3 आया। हाँ, P1 ने अपना मेमोरी फ्री कर दिया है, P2 ने अपना, सॉरी, P3 ने अपना मेमोरी फ्री कर दिया है। ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि आपके मेमोरी में भी क्या हो गए? स्कैटर्ड ब्लॉक हो गए। हाँ, ओके, जो आपका बिग होल था 100 MB का, दैट इज नाउ डिवाइड इनटू द स्मॉल यूज ब्लॉक एंड अनयूज ब्लॉक। हाँ, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 2 यूज ब्लॉक है और 3 अनयूज ब्लॉक है। तो सच अ मेनी होल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड और स्कैटर्ड इन द मेमोरी। जैसे यहाँ पे 3 होल जो है मेमोरी में स्कैटर्ड है, एक जगह पे नहीं है। सो विच डू नॉट सेटिस्फाई द मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू जॉब। हाँ, अभी अगर लेस देन 20 MB है तो सेटिस्फाई होगा। हाँ, मगर मेरा फ्री स्पेस कितना है? 45 MB का है। हाँ, मगर ग्रेटर देन 20 का मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि मेरे पास मेमोरी है मगर जॉब के लिए, प्रोसेस के लिए मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी जॉब दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। हाँ, एंड वर्स्ट पार्ट क्या होगा आपका एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का? वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो जैसे जैसे ब्लॉक आते जाए, सॉरी, प्रोसेसेस आते जाएंगे, हम मेमोरी अलोकेट करते जाएंगे। प्रोसेस जब फिनिश हो जाएंगे, मेमोरी रिलीज होती जाएगी। तो आपके पास अभी यहाँ पे तो भी स्मॉल होल्स बिग इनफ है, मगर लेटर ऑन क्या हो जाएंगे? आपके स्मॉल होल जो है मेमोरी के, फ्री स्पेस के होल जो है, फ्री स्पेस के स्लॉट जो है, वो स्मॉल स्मॉल बनते जाएंगे। ओके, हाँ, ये एक प्रॉब्लम है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का। और जैसे जैसे ये प्रोसेस आते जाएंगे और रिलीज होते जाएंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मुझे जो ये टेबल जो आपके सामने दिख रहा है, ये टेबल सर्च करने के लिए लॉट ऑफ टाइम लग जाए, क्योंकि ये टेबल से मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि सब होल सर्च करने के बाद पता चलेगा कि नया रिक्वेस्ट जो है वो नया रिक्वेस्ट ग्रांट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो डायनामिक पार्टीशन अलोकेशन के लिए, हाँ, डायनामिक पार्टीशन किसका? कंटेजियस का, नॉन कंटेजियस का नहीं है, कंटेजियस का। रिमेंबर करो, लेटर ऑन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ नॉन कंटेजियस डायनामिक पार्टीशन। करंटली क्या है? कंटेजियस चाहिए। तो नॉन कंटेजियस होता तो मैं एक 10 MB का और एक 15 MB का देके रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते थे। ओके, सो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन एंड लॉट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड टू सर्च द फ्री होल। बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इंटरनल फ्रैगमेंटेशन नहीं क्या यहाँ पे? नहीं, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन नहीं है। प्रोसेस का साइज इंक्रीज हो सकता है क्या? यस, प्रोसेस का साइज इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो, हाँ, प्रोसेस अभी अभी का डिमांड 10 MB का है प्रोसेस P1 का। लेटर ऑन प्रोसेस P1 से दैट आई रिक्वायर्ड 15 MB। ओके, तो 15 MB प्रोसेस को मिल सकता है। हाँ, तो इट इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम। हाँ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ होल फिक्स नहीं है, दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से इट विल इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग।
Okay, so we have seen the two problems. With contiguous allocation for a fixed partition suffer from the internal fragmentation. Contiguous partition with a variable size partition will suffer from the external fragmentation. अभी यहाँ पे अगर मुझे solution find out करना है ये fragmentation के लिए, particularly जो external fragmentation है, तो if I am going to shift the job, for example, अगर मैंने ये वाला P4 वाला जॉब जो है ये शिफ्ट कर दिया है, कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है? हाँ, इसको कितना था 25 MB था, तो मैंने इसको 42 कहाँ तक कर दिया है? 65 तक कर दिया है। अगर इसको हमने 42 65 तक कर दिया है तो मेरे पास क्या रहेगा? 65 to 99। हाँ, यानी कितने का मेरा फ्री होल जाएगा? पहला ये 25 ऊपर चला गया, ये 20 to 25 15 और ये कितना था? ये 15 था, तो मेरे पास नियर अबाउट 35 MB का फ्री होल। हाँ, सो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, मैं मेरे जॉब जो है वो जॉब्स शिफ्ट करूं। हाँ, मैं मेरे जॉब जो है वो जॉब क्या करेंगे हम? शिफ्ट करेंगे। अगर हमने जॉब शिफ्ट किए तो उसको जो सॉल्यूशन बोलते हैं दैट इज नथिंग बट कॉम्पैक्शन। दैट इज नथिंग बट व्हाट? अ कॉम्पैक्शन। तो मैं कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई करूंगा? सॉल्यूशन फॉर द फ्रैगमेंटेशन इज नथिंग बट द कॉम्पैक्शन। मैं मेरे कौन सा आएगा? कॉम्पैक्शन होगा। द कॉम्पैक्शन में क्या करेंगे? कलेक्टिंग ऑल फ्री होल्स। हाँ, जितने भी फ्री होल्स है वो फ्री होल्स को हम एक जगह पे लाएंगे एंड वी कैन मेक अ बिग होल। हाँ, जैसे स्टार्टिंग में मेरा 100 MB का फ्री होल था, तो अभी कैसे हो जाएगा? ये 45 MB का मेरा फ्री होल हो जाएगा। हाँ, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन व्हेन देयर इज इनफ टोटल मेमोरी स्पेस टू सेटिस्फाई रिक्वेस्ट। जैसे अभी था मेरे पास 45 MB था, बट 25 MB का स्पेस जो था वो मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर सका क्योंकि अवेलेबल स्पेस वाज नॉट कंटीन्यूअस। हाँ, तो उसको लिए कौन सा फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे हम? एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन बोले। और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन के लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज नथिंग बट द कॉम्पैक्शन और द डीफ्रैगमेंटेशन। हाँ, कॉम्पैक्शन और डीफ्रैगमेंटेशन क्या करता है? शफल द मेमोरी कंटेंट। हाँ, मेमोरी कंटेंट्स को क्या करेंगे हम? शफल करेंगे, सो दैट all so as to place all the free memory together in one larger block। तो ये तीन ब्लॉक थे, 10 MB का, 15 MB का और 25 MB का। इसको हम क्या करेंगे? एक लार्ज 45 MB का ब्लॉक बनाए। हाँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जॉब जॉब क्या करने पड़ेंगे? आई वांट टू मूव द जॉब। ओके, तो डायनामिक मेमोरी अलोकेशन के लिए अगर मेरे पास जो चॉइसेस है, हाँ, तो how I am going to allocate the memory? how I am going to allocate the memory? जो होल्स है, फ्री रीजन्स है, वो फ्री रीजन्स हम कैसे allocate करेंगे? उसके लिए आपके पास जो चॉइसेस है, जो फ्री रीजन मैनेजमेंट्स के जो अल्गोरिदम्स है, दैट आर द फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट पे क्या करेगा? इट अलोकेट्स द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ, जो आपका सेटिस्फाई, जो आपका रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करेगा। बेस्ट फिट बोल तो क्या करेगा? इट विल सर्चेस ऑल द फ्री होल। हाँ, और जो स्मॉलेस्ट है, हाँ, that will satisfy your request is going to be allocated in base fit, and the worst fit, in place of searching for the first big hole that is enough to accommodate your process, or the the smallest hole that is big enough to accommodate your request, in place of that one it will going to get for the largest hole। हाँ, small hole या big enough वाले के बजाय क्या करेगा? लार्जेस्ट वाला करेगा।